Welcome once again to my channel Management Ki Pathshala. In the previous session we have discussed inflation as you have seen in the part 1. In part 2 we are going to discuss causes of inflation in India. In India, what are the causes of inflation, or in what ways, or what are the reasons of inflation, we will see here. And we will discuss each point wise. As you are seeing in the presentation that I have mentioned 4 types of inflation. It means there are 4 reasons, there are 4 causes of inflation in our country. First is international inflation, second is increase in wages, third fall in production, and fourth is population pressure. So let's start from first point, international inflation. If the price of a particular commodity like petroleum, if petroleum product in the international market get increased, then obviously our country will also get affected, because as you all know that we are not the oil producer country in the world. There are few countries like Gulf countries, they are the highest exporter, or they are the highest producer of petroleum products, and they are supplying petroleum products to other parts of the world. So if the price of that particular commodity increases, then obviously its effect will be done in our country also and rest other parts of the world also. This is termed as international inflation. इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय महंगाई कब तब बढ़ती है जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, जब किसी भी वस्तु की प्राइस जो है यानी उसका मूल्य जो है वो बढ़ता है. जैसे कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो हमारे कंट्री में नहीं होता है, हम लोग बाहर से उसे एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग बाहर से उसे आयात करते हैं. तो उस समय क्या होता है कि उसकी अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है फॉरेन मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उसका असर कहाँ देखने के लिए मिलता है? उसका असर हमारे कंट्रीज़ में. और जब पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स बढ़ती है तो इसका असर सीधे तौर पे पूरे विश्व पे पड़ता है, और उसके साथ साथ हमारी कंट्री पे भी पड़ता है. हमारी कंट्री पे किस तरह से पड़ेगा? यहाँ की चीज़ें महंगी हो जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है. ऑयल को जब हम लोग लाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो इंडिया के हर स्टेट में वो प्रोड्यूस होता है, वह हर स्टेट में बनता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ प्रोडक्ट्स साउथ इंडिया में बनते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया में बनते हैं, कुछ ईस्ट इंडिया में बनते हैं, और कुछ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वहाँ पर बनते हैं, और कुछ साउथ ईस्ट में बनते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में बनते हैं, कुछ साउथ वेस्ट में बनते हैं. तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होती है. तो इसका असर सीधे तौर पे देखने के लिए हमें मिलता है. तो इसीलिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट को देख सकते हैं. इंक्रीज इन वेजेस. इंक्रीज इन वेजेस, इट मीन्स दैट when the wages or when the salaries of a person gets increased, then obviously when the salary of a person gets increased, then their cost of living will be increased. It means that their standard of living will increase. Now they will obviously purchase a good amount, good brand. They will go for the good brand. They go for it. They go for purchasing a bulk. They just purchase the commodities, or they purchase the products in the bulk quantity, or even we will see they get their numbers gets increased. It means that the number of workers whose salary gets increased, their purchasing capacity or their purchasing power also gets increased. So this is also the main cause of inflation, because the production, whatever the production is, whatever the demand and what are the supply, what is the supply, they have, the organization or the companies or the factories, they have to maintain the demand and supply. And once means at a time when the salary gets increased, means when the laborers are highly paid, at that time they will start purchasing in bulk, and the commodities are in limited, but their demand gets increased, their need gets increased. So so it affects on the, so this is the main reason to create inflation, because when the resources are limited and the demand gets increasing, the demands are increasing day by day, so it is not possible for the company to fulfill the demand of the workers. So what they do, they start rising the price of a commodity. The companies start rising, the companies start taking high price for a commodity from the workers or from the consumers or
from the purchasers who are purchasing the commodities. So this is the reason of inflation in our country. Now third point, if we will discuss third point, fall in production. Exactly, when the production gets fall, it means that when there is certain types of there are consequences, or there are some types of incidences happening in our country, and the production gets hampered. The producer or the companies are not able to produce that much amount of commodity or that much amount of product, whatever they are demanded from the market. At that time, what the companies do, they just rise the price, they just makes the price higher, so that limited number of people can purchase that product. For example, suppose if the price of onion gets increased, then what the consumer will do, if a particular consumer is purchasing, or his daily expenses is 2 kg of onion or 1 kg of onion, if the price gets now the price is 20 rupees, and if the prices gets 100 rupees or 75 rupees or 50 rupees, then what they will do, they will decrease their demand, they will decrease their purchasing power. What they will do, they will purchase half kg or 200 gram or 300 gram or suppose 100 gram of the commodity. इसका मतलब है जब प्रोडक्शन में गिरावट, यहाँ पर इसका मतलब है प्रोडक्शन में कब गिरावट होगी, क्योंकि जब लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा अमाउंट में परचेस कर रहे हैं, पर कंपनी के पास जब उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही है हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो कंपनीज़ को सारे लोगों को फुलफ़िल करना है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पॉपुलेशन पर डिस्कस करने वाला हूँ, या मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो रही है पर लोगों की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो उनकी डिमांड को सारे लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करेगी, या प्रोड्यूसर जो है उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि हम सारे लोगों की डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। और इसीलिए चीज़ों को महंगी की जाती है, ताकि लोग जो है कम अमाउंट में, यानी उनकी जो क्वांटिटी है, परचेसिंग क्वांटिटी है, वो कम क्वांटिटी में किसी भी गुड्स को परचेस करेंगे। Now fourth point, population pressure. It is the biggest cause of it is the biggest cause of inflation, population pressure. Because if our population is increasing, then we should also increase our production, and also we have to increase the production, we have to set up more factories, or we have to set up more plants to fulfill the demand of the consumer, because the population is increasing. For example, if today our country's population is 138 crores people are staying in our country. So you can assume that such a bulk population we have, and we have to maintain, we have to provide them goods and services, we have to provide them food, we have to provide them clothing, we have to provide them shelter. So these are the things. So in this scenario, if the production is limited, if the company is not able to produce that much quantity of goods to supply or to fulfill the needs of the people, so what they will do, they will increase the price of the product. Then by this means that what the people will do, they will purchase the goods in a limited number or in a limited quantity, and also the company or the factories or the producer is not having that much pressure, so they can unnecessary way. So this is so unnecessary. There is no reason of increasing the price of a particular commodity, but due to the population pressure, because the population is more of our country, so the company's duty is to fulfill the needs of all the people. So what they will do, or what the producer will do, they will just raise the price, they will just make the price higher, so that the people will purchase the goods in a limited quantity, or they will purchase in the limited amount. So in this way, these are the things which we have discussed, and these are the causes of inflation. ये सारे कारण थे इन्फ्लेशन के, महंगाई के हमारी कंट्री में। उसके बाद नो लिमिट्स टू ग्रोथ।
नो लिमिट्स टू ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। अगर अनलिमिटेड ग्रोथ है उस सब, और ये कब पॉसिबल है अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी लोगों की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, पर कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उसे फुलफिल कर पाए, तो ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर लिमिट का मतलब होता है कि हमारे अंदर, हमारे अधिकार में कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे वो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है या प्रोडक्शन की ग्रोथ हो सकती है। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो उसमें तो महंगाई घटेगी, पर हम यहाँ पर महंगाई के कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पीपल्स की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उनके पैसों की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, डे बाय डे देयर मनी इज गेटिंग इंक्रीजिंग, बट द प्रोड्यूसर आर नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। पीपल के पास, कंपनीज के पास इतने क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज इतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं, उनके पास लोग नहीं है कि उतने गुड्स को फुलफिल कर पाएँ, तो जिसकी वजह से महंगाई का बढ़ना लाजमी है, यानी महंगाई बढ़ सकती है या बढ़ती है इन कारणों से भी। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय बजट, बजट के अकॉर्डिंग भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब और इसमें यहाँ पर बजट का क्या मतलब होता है, ये मैं आता हूँ। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय बजट का ये मतलब होता है कि जब बजट के अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ जाते हैं, या कि फिर ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स बढ़ जाते हैं, या कि फिर पैकेजिंग मटेरियल के रेट्स बढ़ जाते हैं, या सेमी फिनिश्ड गुड्स के रेट बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम कंपनीज के ऊपर ये प्रेशर होती है कि अगर वो अपनी गुड्स की कीमत को नहीं बढ़ाएंगी, इफ़ दे विल नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, देन दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट। एज यू ऑल नो दैट दिस इज द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन। People are focusing on both aspects. They are focusing on both the aspect. First is the quality, and the second is quantity, and the third is the price. These are the three factors which the companies, which the people are focusing on the particular while purchasing the product or while making the plan to purchase that particular product. So this is the main reason the companies, in this way they have to increase the price of the commodity, because the raw material price gets increased, thus as I have discussed, then the price of transportation cost get increased, then the packaging cost, production cost. These are the factors which are these are also the factors by which the inflation gets increased. Next, an increase in import duties. When the import duties gets increased, then also where we will manage or where we will fix the price, what extra taxes or what extra import duties we are paying, where we will manage. We will manage in increasing the price of a product, then only we can pay the import duties. Right? If the import duties, because the company is there, whenever there is business houses, their main motto is to earn profit. They are not here just to profit, and they are not just here to provide the facilities, or they are not in a position to bear the loss. If they are paying, or if the government is pressurizing them to pay the import duties, or they have to pay extra import duties, then in that scenario or in that time, the price of the commodity, the companies always, they are not in the position to increase the price, but then also they are pressurized to increase the price of a product to fulfill the demand, or to minimize the gap between the import duties and the cost of production of a particular product. Now, expenditure on defense. हम जो खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर, वो भी इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर इन डिफेंस पे खर्च नहीं होगा, या डिफेंस पे जो खर्च होती है वो बल्क में खर्च होती है, क्योंकि वो डेली बाय डेली अपडेट होती रहती है, उनकी टेक्नोलॉजी डेली बाय डेली अपडेट होती रहती है, और टेक्नोलॉजी जब अपडेट होती है तो उसकी प्राइसेस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम होता है तो बिना प्राइस के कोई भी रिसर्च या कोई भी नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट, या उसी प्रोडक्ट में न्यू फीचर, एडिशन ऑफ द न्यू फीचर्स और एडिशन ऑफ द न्यू सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी, all these things needs money, and in that way also we have to spend more on our defense sector to make our country a well sufficient or a secured nation. Now we will discuss the effects
what are the effects of inflation? इन्फ्लेशन का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का? नाउ फर्स्ट इज डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ रूपी, सेकंड alters the distribution of income, third weakens the value of money. So first of all we will discuss decrease in purchasing power of rupee. It means that when the purchasing power of rupee gets decreased, it means that when the person is not in the position to purchase a particular commodity, their price or their salary gets decreased. Like, let's see by the explanation which has been discussed here. Depreciation is especially hard on retired people with fixed income. As spending power decreases each month, it means that their income, a retired person income gets depreciated. It means that their salary or their pension gets reduced day by day. They are not in the position that they will get the fixed amount of income, or they will get the fixed amount of salary. Day by day their income or their source of income gets reduced, and so in this way they are not in the position to purchase more and more type of goods, or their purchasing power lowers down, because now the money or the salary or the wages what they are getting or what they are receiving, now they are not in the position to receive more and more, because it lowers down as spending power decreases each month. And as discussed here, as spending power, so their spending power, the purchasing power, it means here we can say the purchasing power gets lowers down each month. Now by example we can see, suppose a if a person is now in the job and he is getting 50,000 rupees per month, now he gets retired, now he is getting only 25,000 rupees per month. Now he have to sustain his life, he have to run his life in that 25,000. So now the person's purchasing power gets reduced. Now they are not in the position daily. Previous, the person is daily going to market and purchase anything from daily basis. On the daily basis he is purchasing, but now once a week he will go to market and bring only the essential goods which are required to run the family, because now he is not in the position, his income gets lowers down. Now second point, alters the distribution of income. It means that let's discuss the distribution of income. Lenders are usually hurt more than borrowers during long inflationary periods, which means that loans made earlier are repaid later in inflated rates or inflated rupees. Here it means that lenders जो उधार देते हैं उन पर, उनसे ज़्यादा जो बोरोवर, जो कर्ज लेने वाले हैं, जो कर्जदार हैं, उन पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है। कब? इन्फ्लेशनरी पीरियड में, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, क्योंकि वो आज लोन किसी पार्टिकुलर रेट पर ले रहे हैं, पर उसे जब वो रीपे करेंगे, पर उसे जब वो फिर से पेमेंट करेंगे, उस लोन की प्राइस जो आप पे करोगे, जो जितना आपने लोन लिया है, तो वो जो रेट्स बढ़े हुए हैं उसी रेट्स पर आपको पे करना होगा, क्योंकि एज वी कैन सी द इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो ही as the interest rates increase, so the borrower has to pay more money what he has taken in before the inflationary period. इन्फ्लेशन यानी महंगाई से पहले जो उसने रुपये लिया है, पर अब महंगाई के बाद जो वो पे करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट रेट अभी करंट में चल रही है उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग वो पे करेगा, क्योंकि और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? महंगाई वीकेंस द वैल्यू ऑफ मनी. इट मीन्स दैट मनी की जो वैल्यू है वो कमज़ोर हो जाती है. एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूएस मार्केट. It totally depends on dollar, because United States of America is the powerful nation. It is the supreme power of the world. So dollar decides what will be the price of the money will be for the particular nation, like India, Pakistan, Afghanistan, China, France, Germany, Switzerland.
So or if you talk about UAE, United Arab Emirates, then USSR, United States of Russia. So these are the factors, or these is the factors which weakens the money. Inflation weakens the function of money as a storage of value because each unit of money is worth less with the passage of time. इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो वीकन होता है, कमज़ोर होते जाता है. कब? द फंक्शन ऑफ मनी एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू. जब हम मनी को स्टोर करके रखते हैं तो महंगाई में इसकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि अगर हम उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तभी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी. पर कहीं पर अगर स्टोर किया हुआ है आपका पैसा तो वो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती जाती है डे बाय डे. क्योंकि अमेरिका के डॉलर के कंपैरिजन मैंने किया तो कंपैरिजन उसकी कभी 70 to 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट हमेशा उनकी जो फ्लक्चुएशंस होती है वो 60 to 80 रुपीज़ के बीच होती हैं, और हमेशा 70 to 80 रुपीज़ तो हमेशा होती हैं. क्योंकि 1 रुपये की कीमत वो जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी कीमत जो है वो घटते चली जाती है, हमेशा उसकी कीमत घटती है. नाउ फिक्स्ड इनकम ब्लॉक. अगर फिक्स्ड इनकम जो है वो ब्लॉक हो जाए, इट इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉयज़ टेकिंग फिक्स्ड सैलरी. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, फिक्स्ड सैलरी. पीपल लिविंग ऑफ ए फिक्स्ड इनकम. लोग जो रहते हैं एक फिक्स्ड इनकम के ऊपर रहते हैं, या एक फिक्स्ड इनकम उन्हें पता रहता है कि वो कितने उन्हें मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी परचेसिंग पावर रहती है, वो गुड्स को परचेस करते हैं या वो अपने लाइफ के बारे में सोचते हो. बस सच एज रिटायरिंग. पर जो रिटायर हो जाते हैं, सच ए डिक्लाइन इन देयर परचेसिंग पावर, तो एक तरह का गिरावट आ जाता है उनकी परचेसिंग पावर में, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, एंड कंसिक्वेंटली देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और साथ ही साथ उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर भी असर पड़ता है. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर जो है, यानी जीवन शैली जो उनकी, वो भी बदलने लगती है. अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन. अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि हम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपने वेजेस को. इट जनरेट्स अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम गलत तरीका अपनाते हैं ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द पीपल. और बिल्कुल यह चीज़ है, क्योंकि जिस तरह की जिनकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिलती है, इसी उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिलती है. सेम जॉब सेम सैलरी नहीं होती है. कुछ लोगों की जो हाईली जॉब में हैं पर उनकी सैलरी कम होती है, कुछ लोग हाईली लो पोजीशन पे हैं पर वो हाईली पेड होते हैं. तो दिस इज अनजस्टिस. तो ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है. देयर शुड बी. तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का. रिड्यूस द सेविंग्स. बिल्कुल ये सेविंग्स को रिड्यूस करता है, यानी हम जो सेव करके रखे हुए हैं अपने फ्यूचर के लिए, ये उसे भी कम करता है. लाइक इन द प्रेजेंट सिचुएशन इन द कोरोना पेंडेमिक, इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉम 2020 जनवरी 2020 टू मई 2021, तो आप देखोगे कि हमारी कंट्री के अंदर, अब मैं अपनी कंट्री की ही बात करूँ, हमारे कंट्री के ही अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस काफ़ी बढ़ गए. इफ़ यू सी द इन्फ्लेशन रेट, इफ़ यू सी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देन इट इंक्रीजेस. एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुई है? इंक्रीज़ कर गई है. एम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए भी इंक्रीज़ की हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए भी इंक्रीज़ की गई हुई है क्योंकि कई सारे फैक्ट्रीज़, कई सारी इंडस्ट्रीज़ वो क्लोज हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें काम नहीं है. तो अभी वो क्या कर रहे हैं? अपनी सेविंग्स को यूज़ कर रहे हैं. तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई होने पे भी वही होता है, क्योंकि लोगों की इनकम लिमिटेड होती है. तो वो क्या करते हैं? उनके पास जो सेविंग्स है या वो उनके पास जो बचे हुए पैसे हैं उनका यूज़ वो क्या करते हैं? इसमें करते हैं. लाइक इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द सेविंग्स ऑफ द पॉपुलेशन एज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, सो वेरी डिफिकल्ट टू सेव मनी. यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जॉब खो रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं या हमारी जो आबादी है या हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए या अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो उनके पास जो सेविंग्स है उसका यूज़ वो कर रहे हैं. क्योंकि इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि खर्च डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है. क्योंकि महंगाई होने से प्रोडक्ट महंगा है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. उनके पास उतना लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो उनके पास जो सेविंग्स बचा हुआ वो सेविंग्स का यूज़ वो अपने कामों के लिए कर रहे हैं और अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाना. इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. महंगाई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लग गया
या किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उसका सीधा सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। वो प्रोडक्ट महंगा हुआ और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का महंगा होना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एक ही चीज़ से डिपेंड नहीं करती है, इसके कई सारे रीजंस हैं जो हम लोगों ने पहले देखा है प्रीवियस स्लाइड्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, यानी इंटरेस्ट रेट जो है उसका बढ़ना भी, ब्याज दर बढ़ना भी सबसे बड़ा कारण होता है महंगाई का बढ़ने का। सोशल इविल्स मतलब सामाजिक बुराई जो है ये भी सबसे बड़ा रीज़न होता है महंगाई बढ़ाने का। इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन प्रमोशन ऑफ सोशल इविल्स लाइक ब्राइबरी, घूस, ब्लैक मार्केटिंग मतलब जो काला बाजारी होता है, स्मगलिंग, लोग जो स्मगलिंग करते हैं कम कीमत पे सामान को दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री या दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेट्स या दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्रीज से ले आते हैं और यहाँ महंगी कीमत पे। सुसाइडल एक्शंस, लोग जो सुसाइड करते हैं, एंड किडनैपिंग के केसेस, ये सारे जो सामाजिक बुराई है ये भी महंगाई की वजह से ही होता है। इसका भी सबसे बड़ा रोल होता है महंगाई में। इन सभी से भी महंगाई बढ़ती है, इन सामाजिक कुरीति की वजह से भी इसका बढ़ता है। पुअर लेबर फोर्स का मतलब है जब लेबर फोर्स नहीं है, ना के बराबर लेबर फोर्स है, पर लोगों को प्रोडक्ट टाइम पे चाहिए, लोगों को कई सारे प्रोडक्ट्स चाहिए पर वो बना नहीं पाते हैं, तो उस टाइम में क्या है, महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी। इट जनरेट्स वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन द पुअर लेबर फोर्स, और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है पुअर लेबर फोर्स के होने से। एज देयर इज इन्फ्लेशन सो पीपल कांट इन्वेस्ट बिकॉज दे डिडंट टेक द चांस ऑफ लॉस। तो महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि हम कम लेबर फोर्स रखेंगे तो लोग जो है, या इससे जो है, इसीलिए कम लेबर फोर्स रखेंगे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उसे दे पाएँ, और वो इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि वो अपना लॉस बियर कर ले। सो लेबर क्लास डिडंट मच वर्क टू डू, इसीलिए लेबर क्लास जो है उतना काम नहीं कर पाते हैं या उन्हें काम नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनीज भी हर चीज़ देखती है। अगर वो देखती है कि हम फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं तभी वो ज़्यादा लेबर्स को रखेगा। अगर वो ये देख रहा है कंपनी कि मुझे कल या फिर आए दिन मुझे लॉसेस होने वाले हैं इससे, तो लॉस फैक्टर्स जब भी आएगा तो उसका सीधा तौर पे असर, या उसका सीधा असर हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कि कम लेबर्स को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है। तो इन सारे रीजंस की वजह से भी महंगाई बढ़ती है और लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम्स उठाना पड़ता है। नाउ रिप्राइजिंग कॉस्ट का मतलब होता है द एंटायर इकोनॉमी मस्ट एब्जॉर्ब रिप्राइजिंग कॉस्ट, मेनू कॉस्ट एज प्राइस लिस्ट, लेवल, मेनूज एंड मोर टू बी अपडेटेड। रिप्राइजिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम एडवर्टाइज करते हैं या कई तरह के प्राइस लेवल्स, टैग्स, पैकेजिंग कॉस्ट, इन सारी चीज़ों में भी कॉस्ट होता है। इन सारे कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाते हैं तो ये भी हमारा सबसे बड़ा रीज़न है महंगाई बढ़ने का। द एंटायर, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा पे करना होता है, इसके लिए जब हमें ज़्यादा पे करना है तो ऑब्वियसली, और हमें साथ ही साथ अपने आप को अपडेट भी रहना होगा, तो अपडेट रहना होगा, इसके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। द एंटायर इकोनॉमी मस्ट एब्जॉर्ब रिप्राइजिंग कॉस्ट यानी मेनू कॉस्ट एज प्राइस लिस्ट की जो प्रिंटिंग होती है, प्राइस लिस्ट को हमेशा रिन्यू किया जाता है, उसे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। लेवल्स जो आप देखते हो, रैपर्स आप बोल सकते हो उसको, लेवल्स को जो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर चिपके रहते हैं तो वो हमारे रैपर्स जो होते हैं वो लेवल्स होते हैं। मेन्यूज़, आप होटल्स या रेस्टोरेंट्स, आप कहीं पर जाओगे आप मेन्यूज़ देखोगे, या कि शॉप्स वगैरह भी आप जाओगे या मॉल्स वगैरह में आप जाओगे, वहाँ मेन्यू देखोगे कौन कौन से आइटम्स इनके यहाँ हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ये रखते हैं, कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स ये रखते हैं। एंड मोर हैव टू बी अपडेटेड, यस, दे हैव टू अपडेट देयर शॉप, they have to update their products, they have to update their price list, and so this they want money, they have to invest more amount of money, and this is also the reason of inflation. Effects on domestic product यानी घरेलू प्रोडक्ट पर या घरेलू सामानों पर इसका क्या असर पड़ता है। इफ़ द इन्फ्लेशन रेट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज, अगर दूसरे देशों की कंपैरिजन हमारे कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है, महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो हम आम तौर पे डेली यूज़ के सामान हैं उसमें लेस कंपटीशन हो जाता है।
क्योंकि उसका सीधा सीधा लोग क्या करते हैं, लोगों का सीधा फोकस होता है कि वो कम कीमत में उन्हें जो भी प्रोडक्ट मिले, वो ये नहीं देखते हैं उस टाइम कि वो लोकल प्रोडक्ट है या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है या सेमी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है या मल्टीनेशनल ब्रांड है। वो सिर्फ अपने वो सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स को या अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करते हैं। नाउ डिस्टर्बेंस इन ऑल सेक्टर्स, और जब भी महंगाई बढ़ती है तो एक तरह का डिस्टर्बेंस, एक तरह का उथल पुथल हो जाता है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से द रियल आउटपुट, रिलेटिव प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स एंड द रिजर्व फ्रॉम टैक्सेस ऑल आर अफेक्टेड। तो रियल आउटपुट जो उसका रिजल्ट है, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, रिलेटिव प्राइसेस, उसके अलावा जो रिलेटिव एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं, क्योंकि प्राइसेस उसकी वो बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है, एंड द रिजर्व फ्रॉम ऑल टैक्सेस, और हम जो टैक्सेस पे करते हैं, इन सभी से जो है डिस्टर्बेंस आ जाता है सेक्टर में। एक सेक्टर में जो एक उथल पुथल आ जाता है, एक सेक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। नाउ मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो कौन कौन से मेजर्स है, कौन कौन सा तरीका है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले। तो पहला फैक्टर है हमारा मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स का मतलब हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। यानी हम इन महंगाई को तभी रोक सकते हैं जब हम सब कुछ मेंटेन करके रखें। यानी मेंटेन करने का मतलब है कि हम अपनी जो डिमांड है और सप्लाई है, दोनों को हम मेंटेन करके रखें, और मनी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे। हम अपनी भी मनी को देख कर रखें ताकि मनी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहे। सेकंड, फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इसलिए नाम पड़ा। फिस्कल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ में टाइम टू टाइम चेंजेस लाती रहती है, वो अपने पॉलिसीज़ को रिवाइज करती रहती है। तो इतने ज़्यादा रिवाइज नहीं होना चाहिए, या रिवाइज भी होने चाहिए तो सभी को ध्यान में रखे, हर कम्युनिटी को ध्यान में रखे। यानी कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर है कि कस्टमर्स को भी देखना चाहिए, साथ ही साथ बिजनेस हाउसेस को भी देखना चाहिए। दोनों का ध्यान रख के उन्हें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पार्टिकुलर एक सेगमेंट पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो और दूसरे सेगमेंट को आप प्रेशराइज कर रहे हो। अगर कस्टमर्स को आप ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हो और बिजनेस हाउस पर आप प्रेशराइज कर रहे हो, तो ये गलत है, क्योंकि इस तरह से भी महंगाई बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट, द नॉन मॉनेटरी मेजर्स और जनरल मेजर्स। यानी नॉन मॉनेटरी मतलब बिसाइड्स मॉनेटरी के अलावा, यानी पैसों को छोड़कर। जनरल मेजर्स मतलब हमें अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स की फ्लो है उसे मेंटेन करना होगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन को हमें मेंटेन रखना होगा। वर्कफोर्स यानी वर्कर्स जो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें हमको अपडेट रखना होगा। उन्हें हमें देखना होगा कि कहीं वो छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें फुलफिल करना होगा। उसके बाद कस्टमर्स की जो इश्यूज़ है, कस्टमर्स को टाइम पे प्रोडक्ट हम ये करें, सप्लाई करें। तो ये सारे सबसे बड़े रीज़न। अगर मार्केट में टाइम पर प्रोडक्ट आ जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। कब होता है? जब दोनों के बीच एक गैप आ जाता है, या दोनों के बीच एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, या दोनों के बीच एक डिस्टर्बेंस आता है, तो तभी इसकी प्राइसेस इंक्रीज होती है। तो ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी मेजर्स के अंदर हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हमारा खुला मार्केट है उसके ऑपरेशंस जो होते हैं, वो जो ऑपरेट करता है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है या किस तरीके से हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से है, किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम पॉलिसी को देख रहे हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन कितने का है प्रोडक्ट्स के अंदर, या हमारी मार्जिन कितनी है। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, किस क्रेडिट रेशियो पर हम प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं, किस क्रेडिट पर हम प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ हैं जिसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं या कि फिर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ फिस्कल मेजर्स मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसे भी हम ध्यान देते हैं और उस पर भी हम फोकस करते हैं और उसे भी हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कट ऑन एक्सपेंडिचर, जो बेवजह खर्च हैं वो हम कंट्रोल करेंगे, हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे, खर्च कम करेंगे। चेंज इन टैक्सेशन सिस्टम, हम टैक्सेशन सिस्टम जो हमारे टैक्स काफ़ी हाईली रेट्स में होते हैं, यानी हमारे यहाँ जो टैक्स के सिस्टम है वो काफ़ी अनकॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में है, क्योंकि सारी चीज़ों के ज़्यादा टैक्स हमें पे करने होते हैं। तो वो बार बार चेंज जो किया रहता है उससे क्या होता है, चाहे कस्टमर्स हो या बिजनेस हाउसेस हो, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फेस करना होता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब
कि हम सब कुछ एक्सपोर्ट कर दें, कि जो भी हमारे यहाँ गुड्स है सारे को हम बाहर ही भेज दें, फॉरेन कंट्रीज़ को ही सप्लाई कर दें, हमारे यहाँ कुछ है नहीं। और फिर क्या होता है, ये महंगाई का सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि हम मैक्सिमम गुड्स को तो कर दिए सप्लाई फॉरेन कंट्रीज़, और जब हमारी कंट्री की बारी आती है तो हम लोगों के पास कुछ रहता ही नहीं है। और ये हमारे लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है डीनेशनलाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन मतलब एक दूसरे नेशन पर डिपेंड होना। हम काफ़ी हद तक एक दूसरे के पर डिपेंड करते हैं। तो हमारी कंट्री इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि हम सारे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करें, या अब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ ही बनाएं, या असेंबलिंग का काम अपने यहाँ करें। तो ताकि दोनों के बीच जो है, या दो कंट्रीज़ के बीच जो है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए ताकि दूसरे कंट्री जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट किए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ड्यू टू टैक्स पॉलिसी। प्रोटेक्शन टू इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। हमारी जो इन्फेंट इंडस्ट्री, इन्फेंट का मतलब जैसे आप लोग इन्फेंट का मतलब बच्चा समझते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ जो हमारे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, हमारे मीडियम इंटरप्राइजेस है, उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना होगा, उन्हें भी हमें साथ लेके चलना होगा। क्योंकि अगर हम अपनी टैक्स को बढ़ाएंगे तो वो इंडस्ट्रीज़ क्या है, कभी गायब हो जाएगा। वो इंडस्ट्रीज़ इस तरह की प्रोडक्ट अपनी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा अगर आप हमेशा टैक्स बढ़ाते रहो। क्योंकि उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो डे बाय डे नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। तो ये सबसे बड़ा रीजंस होता है। नाउ जनरल मेजर्स जो होते हैं, यानी आमतौर पे जो मेजर्स उठाने, सबसे बड़ा रीजंस यहाँ पर होता है पॉपुलेशन प्लानिंग। जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा हमारे इस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पर क्या है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें मोर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मोर डिसिप्लिन की ज़रूरत मतलब इस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग को बनाना होगा कि हम सभी के रिक्वायरमेंट्स को, सभी लोगों के रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकें, सभी पीपल को हम साथ लेके चल सकें, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो भी डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पाएँ। वो कब होगा, जब हम देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास पॉपुलेशन कैसी है, कैसे हम इन सारे पॉपुलेशंस को मैनेज करेंगे, या इतनी आबादी को हम किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग, बिना प्रॉपर प्लानिंग के कभी भी ये इफेक्टिव नहीं होगा। और एकाएक महंगाई बढ़ा देना या महंगाई घटा देना ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें लोगों को देखना होगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कितनी है, और फिर हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं, या हम उसमें कुछ भी अगर प्लान्स ला रहे हैं, या हम कोई भी कई तरीके से हम टैक्स को ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हमें देख कर चलना होगा, हमें देख कर ये डिसीजन लेना होगा। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है सही प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हमारी प्लानिंग सही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी वो सही होना चाहिए। डिमांड क्या है, सप्लाई कैसा है, इन दोनों के बीच हमें हमेशा मेजर्ड वे में हमेशा बैलेंस होकर चलना होगा कि हमारी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या किस हद तक हम सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और प्रॉपर प्लानिंग हम तभी करेंगे, या प्रॉपर प्लानिंग को हम तभी कर पाएंगे जब इन सारी चीज़ों को हम लोग फोकस्ड होकर देखेंगे। इंक्रीज इन आउटपुट, जब हम आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे, आउटपुट को इंक्रीज़ मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हम सभी लोगों को फुलफिल कर पाएंगे। पर यह भी हम देखेंगे कि हम किस हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, या प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब सरकार का स्थायीकरण। सरकार को अस्थायी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम आप फ्लक्चुएट कर रहे हो। जैसे जो भी सरकारें आई है उसे 5 ईयर्स तक स्टेबल रहना चाहिए, ताकि वो जो डिसीजंस ले रही है, वो जो अपने मैनिफेस्टो में जो प्लान्स लेके आई है सिटीजन्स के लिए, तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ डिसीजन ले लिया, कभी वो हो गया, कभी जो सपोर्ट में है या जो गवर्नमेंट में है वो कुछ डिसीजन ले लिया, अपोजिशन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज़ को, चाहे वो गवर्निंग बॉडी हो या कि फिर वो अपोजिशन हो, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। नाउ डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने बार बार बोला, डिसिप्लिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अब यहाँ पर अगर प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, तो हमारी जो इन्फ्लेशन की मेजर्स है उसे हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस, हम कहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल कैसे आएगा, रास्ते में जो आएगा
वहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम, हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, या तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है। तो स्मूथ होना, वो हमें प्रॉपर तरीके से, हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे हम प्रॉपरली तरीके से फॉलो करेंगे। जब हम वो फॉलो करेंगे तभी हम इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। होर्डिंग्स एंड स्मगलिंग, इस चीज़ को हमें रोकना होगा। स्मगलिंग जो होता है यानी कोई भी गुड्स को कम कीमत पे बेचना, तो ये चीज़ हमें रोकना होगा, या बाहर सप्लाई कर देना कम कीमत में। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को तरह तरह के रूल्स बनाने चाहिए ताकि ये सब चीज़ें नहीं हो कि हमारे कंट्री का जो रिसोर्सेज है वो बाहर चला जाए कम से कम कीमत में, और हमारे कंट्री के जो लोग हैं या हमारे स्टेट के जो लोग हैं उन्हें सफ़र करना पड़े। एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्स जो हमारे हैं उन्हें एक्सप्लोर करना, उन्हें बढ़ाना। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा बढ़ाना, यानी पेड़ पौधे लगाना, ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी सही रहे और हमारे लोग भी जो हैं वो भी हेल्दी लाइफ रहें, और साथ ही साथ इस पर महंगाई पर भी हम इस पर फोकस्ड हों और कंट्रोल कर पाएँ। नाउ एट लास्ट कंक्लूजन, इन इंडिया इट हैज़ स्क्वीज द मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हमारा पॉपुलेशन। तो अगर इसमें हम लोग को यही देखा कि अगर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमें ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है। अगर हम पार्टिकुलरली ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और ये तभी कंट्रोल होगा जब हम प्रॉपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम प्लानिंग को करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, हमें कोई भी तरह की इश्यूज़ या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट्स। हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन पर ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ तक कि इंपोर्ट पे, बाहर से गुड्स हमें, यानी जैसे कॉन्सेप्ट आया था हमारे प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत, क्यों आया था ये कॉन्सेप्ट? ताकि हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, स्वतंत्र बने, ताकि हमारे कंट्रीज़ के अंदर ही प्रोडक्शन हो, हम दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्योंकि अगर हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा कोई भी गुड्स का तो हमें कम कीमत पे मिलेगी, पर वही गुड्स अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी अट्रैक्टेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट करना होगा, अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं या फॉरेन कंपनीज़ जो हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर हैं वो हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, और इससे हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। So this is all about inflation. Thank you and have a nice day.